Assalamualaikum guys and welcome back to AltX and today we're starting off with temperature. मैंने आपको पहले इसका एक syllabus overview दे दिया था about what we can expect from this chapter and today we'll cover two aspects. First let's introduce ourselves to the word temperature और ये जो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा this is a Cornell method. आप इसको गूगल कर सकते हैं but a short way to describe this way of teaching is that I list down the questions and I myself give the answers. इस तरीके से ना you know what to expect, you know what the examiner will make you suffer. So I hope this is clear. Let's begin. Temperature, okay, temperature by your host Ahmed Afzal. पहला सवाल, define temperature. टेम्परेचर क्या चीज़ होती है? टेम्परेचर को हमने बहुत बोलते हैं ना कि वी हैव डिसरिस्पेक्टेड दैट टर्म एंड देयर इज़ नो रॉन्ग इन दैट. हमने सच्ची में इस टर्म को बहुत डिसरिस्पेक्ट दी है और मैं आपको समझाता हूँ हमने ये कैसे दी है. तो बेसिकली वी थिंक टेम्परेचर इज़ समथिंग लाइक हॉट, टेम्परेचर इज़ हॉट और लाइक कोल्ड. That is not the case. That's the worst explanation ever. Temperature क्या है? Temperature है sum of average kinetic energy of particles in a substance. आप जिस चीज़ को हीट करोगे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भर जाएगी, उसका एवरेज को हम बोलते हैं टेम्परेचर और ये मेजर हो सकता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी की तो आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे बट या सो बेसिकली दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन. It's not the degree of hotness and coldness, it's not that, it's nothing really, it's the average kinetic energy. दूसरा सवाल, describe thermometric properties and give examples. So let me highlight the stuff which is important. हमें पता होगा कि physical properties which change with the change of temperature. और ये important बात कर रहा हूँ मैं, which change with the change in temperature. टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़. एंड फिजिकल कैन मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. फिजिकल मीन्स यू नो एज आई टोल्ड इन द अदर वीडियो दैट फिजिकल कैन बी रिलेटेड टू लाइक potential difference, it can be related to resistance, it can be related to change in volume and all of this stuff. तो हम सबको सुकून से डिस्कस करेंगे. तो मैंने ये पहली एग्जांपल दी हुई है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और अ गैस. द सेकंड इज resistance of a metal wire या कोई भी वायर है, लाइक जनरली वायर इधर लिखना. तो हमने दो सवाल के जवाब दे दिए. तीसरा सवाल, नेम द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. अब हम बहुत ब्रॉड भी जा सकते हैं और बहुत सिंपल भी दे सकते हैं जवाब. तो आई राइट 3 ऑफ द thermometers which are in our syllabus. Strip and yeah, I didn't say that out of love. Liquid and glass. And number 3, thermocouple. And believe me, they're not a couple. So these are the 3 types of thermometer जो हम पढ़ेंगे आराम से सुकून से. देखो, I'll discuss everything. You don't need to worry कि ये कवर नहीं होगा, वो कवर नहीं होगा. Everything will be covered in this short and sweet set of videos. तो explain what is a strip thermometer. Again, I don't like saying that word, but खैर, strip thermometer क्या होता है? हमें पता है it's a flexible piece of plastic used on the forehead. और it is hygienic है और fragile नहीं है. That means you can use it on kids. जो बच्चे हैं उनके सर पे, जैसे मैं I remember me, I used to break thermometers a lot. तो क्या सीन होता था कि मेरे सर पे एक स्ट्रिप थी, सस्ती भी थी, like it wasn't expensive at all. Like they used to put it on the head और फिर उसके अंदर like बत्तियाँ जल रही होती थी और वो बता देता कि 102 है, 103 and all that stuff. But the main problem that it is, it's not accurate, but it is less accurate and that is a problem. Less accurate relatively, क्योंकि बाकी जो थर्मोमीटर जैसे हमारा नॉर्मल जो आ गया लिक्विड एंड ग्लास वाला आ गया, the ones which use normally, those are very accurate. This is not that accurate. अब आखिरी सवाल, which thermometric property is used to construct a liquid in glass thermometer. तो सबसे अच्छा थर्मोमीटर को कैसे बनाते हैं? change in volume due to temperature. ये इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है.
ये वॉल्यूम हमारी फिजिकल क्वांटिटी और ड्यू टू टेम्परेचर इज वेल टेम्परेचर. नाउ फॉर द फाइनल थिंग, द समरी ऑफ ऑल आई टीच्ड यू इन दिस शॉर्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी सिंपल. समरी बहुत आसान है. समरी ये है कि हर थर्मोमीटर किस चीज़ पे बेस होता है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे, और हम इन सब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को सुकून से डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी डू दैट विल गो ऑन टू थर्मोमेट्री कैलकुलेशंस. और ये वाला पार्ट जो अभी मैं करवाऊंगा वो पेपर 1 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेल लेट्स डू इट. ओके, तो ये ऐसे जैसे मैं आपको बताया था पेपर 1 के अंदर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कांट अंडरस्टेट इट्स इम्पोर्टेंस. थर्मोमीटर के अच्छे खासे सवाल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, थर्मोमीट्री कैलकुलेशंस. एंड इट्स नॉट लाइक कि पेपर 2 में नहीं आएगा, लाइक आता है, बट पेपर 1 के अंदर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो पहला केस जो हमारे पास है वो है अनकैलिब्रेटेड थर्मोमीटर. तो देखो, इन दी एंड आपको थर्मोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए एक फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए. यू कैन डू इट विद वट एवर मैथड यू वांट, लाइक तुम रेशो मेथड भी लगा सकते हो, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू टेक आउट लाइक द सेम आंसर. लेकिन व्हाट वील डू इज़ गो टू द सेफ राउट. और सेफ राउट क्या है, फार्मूला याद कर लो, अल्लाह का वास्ता. सही है, तो लेट्स सी द फार्मूला. इट्स थीटा और डिग्री सेंटीग्रेड is L theta minus L naught over L 100 minus L naught into 100. Sounded a bit strange, तो मैं लिख भी देता हूँ, वापस बोल देता हूँ. थीटा इन डिग्री सेंटीग्रेड L theta minus L naught is upon L 100 minus L naught into 100. मैं लिख देता हूँ ना, क्या मसला है, मुझे मसला तो ही नहीं, लिख देता हूँ. अननोन टेम्परेचर, L नॉट है हमारा लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. And L theta is length of mercury column at an unknown temperature. और वो क्या unknown temperature है, at unknown temperature theta. okay, unknown temperature theta जो हमारा, ये मैंने आपको इधर लिखवाया हुआ है. okay, so this is the formula and this is like its abbreviation, और ये जो आपको सारी चीज़ें जो पता होनी चाहिए. तो ये मैंने एक थर्मोमीटर बनाया हुआ है, it's a hidden and I'm sorry about that, but like थर्मोमीटर है, मान लो, सही है. So let's start with some beautiful questions and believe me they seem hard at first, but inshallah as we go on आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी. So yeah, let's move on. okay जी, ये एक थर्मोमीटर, ये एक सवाल है, और ये हमारे पास डेटा है, और ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया. क्लियर? नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन ब्रोस एंड गर्ल्स. सो बेसिकली हमारे सामने क्या है, एक थर्मोमीटर. स्केरी राइट? नो इट्स नॉट, सॉरी अबाउट दैट. तो खैर लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. आई नो इट लुक्स स्केरी, इट इज़ एन ओके, जस्ट लाइक लेट्स डू दिस. तो लेबल कर लेते हैं पहले. ये हमारा है पॉइंट. I'm sorry line is not so straight, यार क्या कर सकते हैं, बट है जो है. ये हमारा L 0 डिग्री तक, ये हमारा जाएगी लाइन 100 डिग्री तक, और ये जाएगी हमारी लाइन थीटा तक. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. हमारा L थीटा 18 सेंटीमीटर, हमारा L नॉट 2 सेंटीमीटर, हमारा L 100 24 सेंटीमीटर. ये सब आपको सवाल के अंदर दिया हुआ जाएगा. ये मैंने फार्मूला लिख दिया आपके सामने. इट्स प्रिटी क्लियर व्हाट द फार्मूला इज. L theta minus L naught is L 100 over minus L naught into 100. that will give our answer. So let's do it. So let's write down the values. सही. तो हमारा जो थीटा है जो हमने निकालना है, L थीटा जो हाइट थी वो है 18, हमारा L नॉट है 2 अपॉन L 100 24, और L नॉट है 2 इंटू 100.
this is 16/22 into 100, and our answer, let's go up, और ये हमारा आंसर है थीटा इज 72.7 डिग्री सेल्सियस. दैट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको हर डेटा दी हुई थी. आपको L100 बताया था, आपको L0 बताया था, आपको L थीटा बताया था, सब कुछ बताया था. तो लेट्स मूव ऑन टू वेल केस नंबर 2, a bit harder, and I'm not gonna say that this is easy, but inshallah I'll try to make it as easy as possible. Thank you. Okay, now for case number 2. अब इसके अंदर क्या सीन है, देखो केस नंबर 3 है, but we'll discuss it in the end of thermometry, क्योंकि वो केस ना थोड़ा end level चीज़ है. Like that's, even though it may not seem that hard, but उसके सवाल जब आपको दिखते हैं ना, you don't really understand what you're supposed to do in that question. तो वो बात की बात है. Now we'll do a bit more of a hard but a very easy mathematical approach to a question, which is case number 2. अब इसके अंदर सवाल सवाल पढ़ते हैं. सवाल के अंदर उसने बोला लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर दिया हुआ है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इज 2 सेंटीमीटर, 100 डिग्री पे लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इज 22 सेंटीमीटर. What is the length of a liquid column at 40 degrees centigrade? Let's write down the data. L0 2 centimeter, L100 22 सेंटीमीटर, L थीटा मालूम करना. बोला है ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या सीन है, हमें नहीं पता. थीटा हमें दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो लेट्स अप्लाई इट ऑल दिस डेटा टू द फॉर्मूला. थीटा ओवर डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू L थीटा माइनस L0 ओवर L100 माइनस L0. ये रट्टा मार लो, जो भी कर लो, बट याद कर लो. ओके, सो 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज L थीटा हमें नहीं दिया हुआ, -2 सेंटीमीटर, 22 माइनस 2 सेंटीमीटर इंटू 100. 40 मैंने ये इसको मैंने डाल दिया, 40 ये 20 बन रहा था, मैंने इसको इधर डाल दिया. 40 इंटू 20 ओवर, और ये 100 भी मैंने इधर फेंक दिया, इंटू 100 प्लस 2 इज L0. सही है. तो ये हो गया हमारा, लेट्स कैलकुलेट, ये कटा ये कटा ये कटा, तो दैट इज 10 सेंटीमीटर इज आवर L0. ओके, तो हमारा आंसर हो गया D. आई होप आपको समझ आ गया होगा. लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन. मैंने पहले क्या किया, ये 20 बना ना, 40 इंटू 20, 40, एक सेकेंड मैं वापस लिख देता हूँ. क्या सीन था, 40 इंटू 20 गिव्स L थीटा माइनस 2 सेंटीमीटर इंटू 100. ये था ना, मैंने इस 100 को इधर फेंक दिया, 40 इंटू 20, और इस 2 को भी मैंने इधर फेंक दिया. 100 प्लस 2 इज़ L0, और फिर मैंने वही कैलकुलेशन की. आर आंसर इन द एंड केम 10 सेंटीमीटर. हमारा आंसर आ गया D. आई होप दिस वॉज क्लियर. और ये वाला केस 2 है विद फाइंड आउट वन वेरिएबल. देखो, वन वेरिएबल हमारे पास है अननोन, हमें नहीं पता था L थीटा क्या है. सही है, एंड स्टिल वी फाउंड आउट. अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हमारे पास L0 नहीं दिया हुआ होगा. फन फैक्ट, L0 2 दफ़ा यूज़ हो रहा होता है. So that means we'll have to use a bit more of a pure mathematical approach in finding that out. So I hope this case was clear. That's all for this video. I'm sorry this is a bit long, or I know मैंने बहुत लंबियाँ की हैं all that stuff, but today was a good day और हमने बहुत कुछ सीखा. I hope this is clear, and in the next class hopefully we'll start off with thermometric properties, or inshallah temperature will not be pain. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Allah Hafiz. Tata. Bye bye.